Dear students, today we will discuss about OTEC, that is Ocean Thermal Energy Conversion, its availability, its working, performance, limitations, applications and the advantages. जैसा कि हम सबको पता है कि अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ की सरफेस पे, तो 70% ऑफ द अर्थ हैज वाटर ऑन इट्स सरफेस। और सन, क्योंकि सारी जगह पर सनलाइट फॉल होती है, तो 70% ऑफ द अर्थ रिसीव सोलर एनर्जी। यानी कि ये जो ओशन है हमारे पास, जिसमें 70% वाटर अवेलेबल है, इट इज़ द लार्जेस्ट सोलर रेडिएशन कलेक्टर। तो अगर हम बात करें, जब सनलाइट ऊपर फॉल होती है पानी के, तो पानी के ऊपर का टेम्परेचर राइज होता है, बट क्योंकि सनलाइट डीप वाटर में नहीं पहुंच पाती, तो इसलिए समुद्र के अंदर का जो पानी है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है। तो अगर हम बात करें कि अगर सपोज सरफेस वाटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और इन डीप वाटर इज अराउंड एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड, देन दिस डिफरेंस दैट ऑफ 20 degree centigrade may be used for electricity generation. And in this OTEC, that is ocean thermal energy conversion, this temperature difference of surface water and deep water is utilized to generate electricity. And this is the most important and most beneficial method of power generation. If we talk about the history, first of all, in 1881, J.D. Arsonwell presented the idea for OTEC. After that, 1926, 1964. In 1974, OTEC was researched as a part of Sunshine Project. And in 1974 too, first OTEC conference was held. And in 1979, mini OTEC generated 50 kilowatt in USA. US ने 1979 में फर्स्ट मिनी OTEC ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन का प्लांट 50 किलोवाट का इंस्टॉल किया। ऐसे ही अगर हम आगे चलते रहे तो 1981 में टोक्यो, और आफ्टर दैट 1982, 1993 में 200 किलोवाट का ओपन साइकिल OTEC वाज कंप्लीटेड इन हवाई। टॉकिंग अबाउट इंडिया, in 2001, 1 megawatt closed cycle OTEC was constructed by NIOT, that is National Institute of Ocean Technology, and in 2002 NIOT will perform 1 megawatt experiment. If we discuss about the working principle, as I discussed earlier, the temperature difference between the surface water and deep water is utilized to generate electricity. You can see this work on the principle of closed Rankine cycle. See the diagram. This is the surface water and its temperature is around 25 degrees centigrade. This water is collected and gives to us some another fluid which has the boiling point very less, so that this temperature of 25 degrees centigrade can evaporate that fluid like ammonia. Ammonia is used for that. And after making the steam or vapor, this vapor is utilized to generate electricity by using turbine and generator. And after that, जब अब देखेंगे डायग्राम के अंदर कि ये हॉट वाटर जब यहाँ पे गया, इस लिक्विड अमोनिया को इसने वेपोराइज किया, वेपोराइज करने के बाद टरबाइन को गया और टरबाइन से जनरेटेड म्यूचुअली कपल्ड है। जैसे टरबाइन मूव करेगा तो जनरेटर भी मूव करेगा और वहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। बट क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब ये वेपर ने एक बार यूज हो गया टरबाइन में, तो इसका क्या होगा? देन द आंसर इज कि यहाँ से ये जो यूज्ड वेपर निकलेगी स्टीम, उसको दोबारा से कंडेंस किया जाएगा। तो कंडेंस करने के लिए हमें एक ठंडे पानी की जरूरत है। तो हम सरफेस के बहुत नीचे डीप वाटर से कोल्ड वाटर जो कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, उसको हम कलेक्ट करेंगे और उसे कंडेंस करने के बाद दोबारा से उस स्टीम को लिक्विड बनाएंगे और फिर रीयूज करके उसको दोबारा से अगले साइकिल के लिए भेज दिया जाएगा। यानी कि गर्म पानी से उस लिक्विड का वेपर बनेगा और ठंडे पानी को यूज करके उस वेपर से दोबारा से लिक्विड फ्लूइड बना दिया जाएगा। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल। This is of mainly 2 or 3 types. First is open cycle or cloud cycle or OTEC power plant. Second one is closed or Anderson
OTC cycle plant, and third one is the mixing of these two, that is hybrid cycle OTC power plant. Now discussing about the open cycle OTC power plant, in an open cycle OTC, the sea water is itself used to generate heat without any kind of intermediate fluid. यानी कि इसके अंदर पानी ही को स्टीम बनाया जाएगा और उसी पानी से टरबाइन को मूव कराया जाएगा. बट क्वेश्चन ये है, और क्वेश्चन ये अराइज होता है यहाँ पर कि जब सरफेस वाटर जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो क्या वो पानी का स्टीम बना सकता है? ऑब्वियसली नो. बट द आंसर इज कि हमें उसका प्रेशर को बहुत कम करना होगा, क्योंकि प्रेशर के साथ साथ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है. तो अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो इट इज अराउंड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट विच द वाटर इवेपोरेट्स. बट अगर हम प्रेशर को डिक्रीज कर दें और बहुत कम प्रेशर कर दें तो बहुत कम टेम्परेचर पर भी वाटर बॉईल हो जाएगा. तो इस ओपन साइकिल के अंदर हम वाटर ही को स्टीम बनाएंगे, लेकिन हमें पहले प्रेशर को बहुत कम करना होगा. यही इसका प्रिंसिपल है कि इसके अंदर हमें फ्लैश इवेपोरेशन ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ द वार्म सी वाटर by reduction of pressure below the saturation level. See in this diagram, very interesting diagram is there. Red color means warm water cycle, blue color means cold water connection. इस डायग्राम में हम देखेंगे, यहाँ से हमने हॉट वाटर जो कि सरफेस वाटर है, जो कि अराउंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हमने पंप किया. पंप करने के बाद हमने इसको इवेपोरेट किया और इसका वेपराइजेशन किया. बट उसके लिए हमने पहले प्रेशर लोअरिंग पंप यूज किया. हमने पहले उसका प्रेशर कम किया जिससे कि वो बहुत कम टेम्परेचर अराउंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही वेपर बन जाए. और इसमें अब हम देखेंगे ये वेपराइज हो गया है. एंड दिस स्टीम एंड दिस वेपर गोज टू द टर्बाइन विच इज कनेक्टेड टू द जनरेटर एंड हेंस जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. आफ्टर यूजिंग into the turbine, this vapor comes down and has to thrown back to the sea water by using the condenser. कंडेंसर के लिए हम क्या करेंगे, हमने कोल्ड वाटर यहाँ से लिया. ये बहुत डीप वाटर है. सी हेयर 800 मीटर पाइप, 800 मीटर नियरली 1 किलोमीटर इनसाइड द डीप सी वाटर हमने यहाँ से लिया और उसको पंप करने के बाद हमने उसे कंडेंसर में दिया. और कंडेंसर ने का फंक्शन ये है कि उसने उस वेपराइज्ड जो वेपर हमने बनाया था स्टीम, उसको दोबारा से वाटर में बना दिया. और वाटर को हमने मींस उसको हम पी भी सकते हैं, मींस डीसैलिनेटेड वाटर वो होता है, और हम उसको सरफेस पे भी थ्रो कर सकते हैं. तो दिस वाज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ओपन साइकिल ओटीसी पावर प्लांट. नाउ डिस्कसिंग अबाउट द क्लोज साइकिल. In the closed cycle OTEC, warm sea water vaporizes a working fluid such as ammonia flowing through a heat exchanger. इसके अंदर हमें दूसरा फ्लूइड यूज करना है. ओपन साइकिल में हमने वाटर ही को यूज किया था इस वेपर बनने के लिए, बट एट लो प्रेशर. एंड नाउ वी आर यूजिंग अनदर फ्लूइड सच एज अमोनिया विच हैज लो बॉइलिंग पॉइंट एंड इज यूटिलाइज्ड टू मूव द टर्बाइन. तो उसके लिए हमने क्या करा है कि अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे डायग्राम. सी द डायग्राम हियर. दिस रेड पाइप इज हैविंग द वार्म वाटर एंड ब्लू पाइप हैज द कूल वाटर फ्रॉम इनसाइड द सी. तो यहां से हम देखेंगे जब पंप हमने किया गर्म पानी को, हॉट वाटर को सरफेस पे, इस पे से हमने फिर एक इवेपोरेटर को दिया जहां पर एक ग्रीन पाइप के अंदर लिक्विड अमोनिया है जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है. तो हमने इस इवेपोरेटर की हेल्प से और इस वार्म वाटर की हेल्प से इस लिक्विड अमोनिया को वेपोराइज कर दिया और अब हमने इसको स्टीम में कन्वर्ट कर दिया. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल मोस्टली द पावर प्लांट्स इज टू जनरेट वेपर और स्टीम so that this steam can move the turbine and hence the generator so that the electricity can be generated. Then उसके बाद हमने इस इवेपोरेटर ने हॉट वाटर को लिक्विड अमोनिया को वेपराइज किया. उसके बाद वो टरबाइन में गया. टरबाइन से वापस आने के बाद अब जो यूज्ड स्टीम है उसको दोबारा हमें रिसाइकिल करना है, रीयूज करना है. तो उसके लिए हमने एक कोल्ड पाइप वहां से लिया और पंप करने के बाद कोल्ड वाटर को कंडेंसर में दिया
जिस कोल्ड वाटर ने उस स्टीम को अगेन लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और ये लिक्विड अमोनिया को दोबारा से दूसरी साइकिल के लिए यूज किया जा सकता है. बिकॉज द सेम अमोनिया इज यूज अगेन एंड अगेन, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड साइकिल ओटीसी पावर प्लांट. जबकि इससे पहले वाले में ओपन साइकिल में एक बार यूज करने के बाद उसको सी के अंदर ही वापस डाल दिया गया था, बट यहाँ पर हम बार बार सेम लिक्विड को यूज कर रहे हैं, उसी को स्टीम बना रहे हैं और इसी को वापस कर रहे हैं. और फिर जो वापस कोल्ड वाटर यूज हुआ उसको दोबारा से हम सी के अंदर ही डाल देंगे. इस डायग्राम में भी देख सकते हैं सिमिलरली सेम केस है. कोल्ड वाटर को यूज करके हम कंडेंस करेंगे और वार्म वाटर से हम उसको वर्किंग फ्लूइड को वेपोराइज करेंगे. The heat exchanger, mainly evaporator and condenser, are a large and crucial component of the closed cycle power plant. Next is the combination of these two, open cycle and closed cycle, that is hybrid cycle OTC power plant. In a hybrid OTC system, warm seawater enters a vacuum chamber where it is flashed, evaporated into steam, which is similar to the open cycle. Next, you see the diagram here. वार्म वाटर यहाँ से लिया, उसको हमने लो प्रेशर पे वेपोराइज किया और उस वेपोराइज से जो स्टीम बनी उस स्टीम को यूज करेंगे हम लिक्विड अमोनिया को वेपोराइज करने के लिए. पहले हमने इससे पहले क्लोज वाले के अंदर हमने सिंपल वाटर को वार्म वाटर से लिक्विड अमोनिया को वेपोराइज किया था. अब हमने यहाँ से वार्म वाटर से पहले हमने लो प्रेशर पे स्टीम बनाया, जस्ट लाइक इन ओपन साइकिल. उसके बाद में उस स्टीम को रीयूज किया लिक्विड अमोनिया को वेपोराइज करने के लिए. एंड अगेन द सेम प्रोसीजर कि वो टरबाइन में जाएगा, फिर जनरेटर में जाएगा एंड द इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटेड. और इसके अंदर क्या होगा कि हम यहाँ से कोल्ड वाटर लेंगे और कोल्ड वाटर हमने उस यूज लिक्विड वेपर ऑफ अमोनिया को दिया, जिससे वो कन्वर्ट हो गई लिक्विड फॉर्म में, सो दैट इट कैन बी रीयूज्ड अगेन. उसके बाद में जो कोल्ड वाटर वापस यूज्ड होने के बाद नीचे आया, हमने उस जो वेपर हमने इधर से बनी है, वार्म वाटर की जो वेपर थी, हमने उसको इधर दिया इस कोल्ड वाटर यूज्ड में. इसकी एनर्जी को हमने यहाँ से कलेक्ट किया, सो दैट हमें यहाँ से डीसैलिनेटेड वाटर मिलेगा. तो इसके अंदर डबल फायदा है कि हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हैं और हम अपने वाटर को डीसैलिनेटेड भी कर रहे हैं. तो डबल एडवांटेज we will get from this hybrid cycle power plant. Now the discussing about the world and Indian scenario. The installed capacity, there are various installed power plant in India as well as in the world. Talking about the world, Hawaii, it is installed at 1 megawatt OTC plant, and in Japan 120 kilowatt Nauru. In South Korea it is around 20 kilowatt. In Japan, Okinawa, it is around 50 kilowatt installed capacity are there, and they are generating electricity as well. There are the various developing stages power plants like Hawaii. It is of 10 megawatt, and in southern China, it is of 10 megawatt. These are in developing state. Now, discussing about the Indian scenario of ocean thermal energy conversion plant. अगर हम इंडिया के साउथ इंडिया में देखें तो इसके लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये इसके पास इतना ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है, ओशन हमारे पास है कि हम इसमें वेरियस इतनी एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं कि वो सारे दुनिया के लिए भी, यानी जो रिक्वायरमेंट है, इतना स्कोप अवेलेबल है कि अगर इसको यूटिलाइज कर लिया जाए तो मींस बहुत सारी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है. तो अगर हम डिस्कस करें इसकी कैपेसिटी की, तो टोटल ओटीसी पोटेंशियल अराउंड इंडिया इज एस्टिमेटेड एज 180 गीगावाट, 180,000 मेगावाट और 180 गीगावाट. इट इज द पोटेंशियल अवेलेबल अराउंड इंडिया, बट द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी is 0 till now, but we are planning 10 to 25 megawatt plant around the Andaman and Nicobar. Initially it was proposed as 1 megawatt plant and in Tamil Nadu, and we have tested, but due to some problem it could not be completed, and now we are planning 10 to 25 megawatt plant at Andaman and Nicobar.
The applications of OTC are mainly it is the electricity production for which it is built for, and the second one is it is for refrigeration and air conditioning. Means जो inside water है उसको हम water को ले करके और हम buildings में और जगह जगह जहाँ भी हमें इसको एयर कंडीशनिंग के लिए यूज करना है तो हम उसको यूज करके उस कोल्ड वाटर को हॉट वाटर वापस हम सी के अंदर फ्लो करा सकते हैं. तो कोल्ड वाटर की जो उसकी कोल्डनेस है वी आर कलेक्टिंग दैट कोल्डनेस एंड we are air conditioning of the room, buildings and the plants as well. Next advantage of this plant is desalinated water. We are collecting desalinated water from hybrid system as I have discussed earlier. The next advantages of this is a mariculture, fish production. अगर यानी इसके अंदर हम इस वाटर जो यूज होगा वाटर कलेक्ट होगा उससे हम फिश प्रोडक्शन भी कर सकते हैं. There are various advantages of OTEC. First of all, obviously it is clean, renewable, natural resource, free of cost, and available everywhere where the water is available. Then this energy is available because the solar light is falling continuously on surface of the ocean. Zero carbon emission. It is eco-friendly, helps in producing fuels such as hydrogen, ammonia. Produces desalinated water for industrial agriculture. Obviously, I have discussed earlier this one. And finally, the air conditioning for building. जो जमीन के अंदर जो सी के डीप वाटर है वो कोल्ड होता है उस कोल्ड वाटर को यूज करके हम बिल्डिंग्स को एयर कंडीशनिंग कर सकते हैं. Provides moderate temperature refrigeration. There are various disadvantages too. First of all, it has very huge amount of construction cost because we have to construct inside the sea and the maintenance and the construction cost is very large. So OTC produce electricity at present would cost more than electricity generated from fossil fuels. अगर हम दूसरे fossil fuel से जनरेशन देखें तो उससे हमें ज्यादा कॉस्ट इसकी आएगी बिकॉज हमारे पास कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसमें ज्यादा लगता है. Obviously, risk of leakage of ammonia is there. Next is cold water discharge on surface water is dangerous for marine life. अगर वो cold water जब हम discharge करते हैं तो that is dangerous for marine life, aqua life, and the risk of electric hazards and use of compressed gas. This is also the problem of OTEC. Thank you.